So today's topic of discussion I want to discuss is gravitation. Okay. So the first thing in gravitation we study is the Newton's law of gravitation between 2 point masses m1 m2. So there is a gravitational force which is pulling the masses towards each other, whose magnitude we know as g m1 m2 by r square, where r is this distance. Okay. So there is the law of gravitation which Isaac Newton gave. सबको पता है ये? हाँ सर. सबने सुना है कभी कभी? Okay. So this is the law of gravitation. So this force is attractive and this force acts along the line which joins the two centers. ठीक है? So value of this g gravitational constant is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square plus kg square. minus 11 नहीं होता है ना? हाँ. Yeah. So ये g का वैल्यू हो गया. Okay. So ठीक है, सब तो पता है आप लोगों को. इस चीज का वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है. Okay. So now suppose we have more than one forces. Suppose this is one mass m1, there is one other mass m2, and there is third mass m3. ठीक है? And you want to find out the net force on the second mass. इस पे आपको net force निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? So we can write force on mass 2. This can be written as force on mass 2 due to first body plus force on mass 2 due to this body. तो दोनों का ऐड करेंगे तो नेट फोर्स मिलेगा. होगा ऐसे? होगा तो? हाँ सर. So F21 will be like this. This will be F21 and this will be F23. दोनों का magnitude लिख सकते हैं इसके यूज करके. So you know the magnitude and direction of both the forces. So thus you can find out the resultant force. ठीक है? By vectorially adding. Okay. So अगर इसको I के ऊपर J के फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत easily add हो जाता है वो. ठीक है? So इसका कंपोनेंट x में लो, y में लो, इसका भी x और y में कंपोनेंट लो, एंड दोनों को ऐड कर दो. ठीक है? So उससे बहुत इजी हो जाता है. ठीक है? 3x I cap plus 3y. So if you take the x and y components, तो दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऐड हो जाएगा. तो इससे आपका प्रॉब्लम काफी आसान होता है. ठीक है? सो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन मल्टीपल. जब बॉडीज होते तो फोर्स कैसे निकालते हैं. ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? बेसिकली दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास. सो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है. दैट मीन्स व्हाट? लाइक इफ यू हैव अ मास लाइक दिस, सपोज अ मास कैपिटल है. ठीक है? So as soon as you place a mass here, this mass produces a field which is called a gravitational field. इसके अराउंड एक फील्ड आता है. We call it an invisible field. वो कुछ ऐसे होता है. ठीक है? So जैसे हमने कोई मास को इंट्रोड्यूस किया कहीं पे भी,
So this mass produces a gravitational field around itself. ठीक है? So as soon as you place another mass here, एक smaller mass बहुत दूर place किया आपने. So this mass experiences a gravitational force towards this capital, right? But actually इन दोनों के बीच में कोई connection नहीं है, बस space है बीच में. But just because the this mass produces a gravitational field around itself, so ये mass और field interact करता है, and that's how this small mass gets attracted to bigger mass. So this gravitational like ये suppose gravitational field हमारा g होता है basically. So इस पे force होता है हमारा m into g. इसको gravitational field बोलते हैं. मैंने देखा होगा आपने, this is called acceleration due to gravity. तो gravitational field को acceleration due to gravity बोला जा सकता है. ठीक है, समझ में आएगा क्या हुआ? Yes, sir. हाँ So सर. now in this case the gravitational field is always towards the mass because the gravitational force is always attractive. तो हमेशा जो भी आएगा उसके पास आने की कोशिश करेगा. तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द मास होता है. ठीक है, ये हो गया. और क्या है? तो बस इसी को सॉल्व करेंगे तो you'll get the gravitational field as सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, क्या आएगा? दिस विल बी g कैपिटल m by r स्क्वायर. इससे अगर आप r डिस्टेंस पे देखते हैं तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा दिस विल बी gm by r स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, आप लोग के सिलेबस में ये है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रॉड? ऐसे कुछ है आपके सिलेबस में? No. ये पॉइंट पे ये लेंथ एल है. व्हाट द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस रॉड एट पॉइंट पे है? कैसे? नहीं, छोड़ दो फिर. मतलब ये तो ना तो ग्रेविटेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. ओके ओके, ठीक है ठीक है. इसमें इंटीग्रेशन अगर आता है इसलिए हम पूछ रहे थे. ओके चलो. सो नेक्स्ट लेट अस डू वन सिंपल क्वेश्चन. ये आपने किया भी होगा एक्चुअली. आपको दिया हुआ है अर्थ है एंड मून है. द मून है हमारा. सो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स दिस इज वेरी लार्ज. कितना दिया हुआ है आपको ये? दिस इज 4 into 10⁵ किलोमीटर्स. ठीक है, आपको मास ऑफ अर्थ दिया हुआ रहता है. कितना दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ, किसी को पता है? मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 into 10⁻24 kg and mass of moon is given as 7.4 into 10⁻22 kg. ठीक है, then आपको पूछा गया कि like at what point is the gravitational field zero due to electric field earth and moon. तो कौन से पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है ये आपको पूछा गया है. What is the mass of the moon? 7.4 into 10⁻22 kg. ओके, ट्राई कीजिए. So let us solve this simple. So क्या दिया हुआ? You have to find a point where the gravitational field is zero. So gravitational field due to earth will be towards the earth and gravitational field due to moon will be towards the moon. Okay. So if this distance is x, so ये distance भी आप निकाल सकते हो. This will be like 4 into 10⁵ minus x. ठीक है. So gravitational field due to earth, इसका magnitude कितना होगा? This will be g into mass of earth by distance of point to earth, इसका square is equal to g into mass of moon into ये distance का square 4 into 10⁵ minus x whole square. So in this you'll get the answer.
इतना आएगा. So at this distance the gravitational field due to both of them is 0. तो दोनों का सम 0 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है तो सबको? Yes, sir. हाँ सर. ओके, अभी आता है नेक्स्ट ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स. सो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारा, दिस कैन बी लाइक, सपोज एक पॉइंट मास लिया हमने, सो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे आता है ऐसे. सो ड्यू लाइक बेसिकली दिस लाइंस ऑफ फोर्स दे शो कि ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या है. ओके, नाउ इफ यू हैव टू मासेस, अगर दो मासेस है, सो इसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कुछ ऐसे होता है. ऐसे होता है. ठीक है, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द टू मास सिस्टम. ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे पॉइंट करता है. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे, if you see in this region the density of gravitational field is more, density of like field lines is more. So because this density of field lines is more, therefore we see that the gravitational field is more here. And यहाँ देखेंगे तो field lines की density थोड़ा कम है, तो यहाँ पे gravitational field less है. ठीक है, समझ में आया तो सबको? हाँ सर. तो Yes, इसको sir. इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, तो इसको हम फोटो खींच लेते हैं. ओके, सो ये ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स हो गया. और क्या क्या था आपके टॉपिक में? ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड और अर्थ सरफेस कितना होता है? अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? पता है किसी को? 9.8 or 10. So this is the gravitational field on the surface of Earth. This is g mass of Earth by radius of Earth square. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा वैल्यू. ठीक है, now we fit a gravitational field at a height h. कुछ ऐसे हाइट पे ग्रेविटेशनल फील्ड रहता है. सपोज ये पॉइंट पे हम देखते हैं, दिस हाइट इज h, this radius is r, radius of Earth, and you want to find out the gravitational field at this point. So how will you find out gravitational field at h? This can be written as g mass of Earth by re plus h whole square. Okay, so if this h is small, तो आप इसको बाहर ले सकते हैं. This can be written as g me by नहीं, r को बाहर ले सकते हैं, re square into 1 plus h by re whole square. ठीक है, so if this h is very less compared to r, अगर बहुत पास है सरफेस के, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, and radius of Earth is 6400 kilometer, तो compared में 1 किलोमीटर 0.1 किलोमीटर, above the surface is not that much. So if this is very small, तब आप binomial theorem लगा सकते हैं. You can write this as 1 plus h by re whole raised to minus 2, and you can approximately solve it like this. This can be written as g me by re square into 1 minus 2h by re. तो बेसिकली आता है मेरा जी एच इक्वल्स टू
g into 1 minus 2h by r. So there is a gravitational field at a point at a height h above the ground. इसमें एक ही कंडीशन है कि हाइट बहुत छोटा होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है। Now if we take at a point inside the earth, like inside depth d, d depth के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कैसे निकालेंगे? बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस विल बी ड्यू टू द मास प्रेजेंट हियर, इसके अंदर। इसके बाहर जो मास प्रेजेंट होगा उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ऑल दिस पॉइंट्स विल गेट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ बोल नहीं रहे। यस सर। सो हाँ सर। इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? इसलिए g इंटू एम डैश बाय ये आर स्क्वायर। ठीक है। नाउ मास इनसाइड दिस रीजन कितना होगा? दिस विल बी like total mass m, mass of the earth divided by radius volume of earth into volume of this region. ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज हम लोग अज्यूम करते हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, सो दिस इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इतना मास हो गया। मास पर यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी हुआ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। तो सॉल्व करेंगे तो आता है एम ई इंटू आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो विल गेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है गया? दिस विल जी इंटू एम ई आर बाय आर क्यूब। ठीक है। सो इसी को आप लिख सकते हैं, आर को आप लिख सकते हैं आर ई माइनस डी। सो इसको आप लिख सकते हैं जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो दिस ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस आर एट अ डेप्थ डी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो इसमें डी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, आर से छोटा होना चाहिए ऑब्वियसली। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एच का वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते, इट इज वेरी लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये सब है। हाँ सर। Now if you see the effect of earth rotation, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। That the earth is rotating like this with angular velocity omega, and आप ये पॉइंट पे देखना है तो कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर, बट बिकॉज दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग अर्थ, सो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर ले सकते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर इनटू दिस स्मॉलर। ठीक है। सो इफ सपोज ये एंगल लैम्डा है, तो आप सो नाउ यू वांट टू फाइंड आउट कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। तो कैसे करेंगे इसका? तो बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा कि अच्छा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। सो लॉन्ग दिस डायरेक्शन कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो इसका जी इफेक्टिव आपका ऐसे कुछ आएगा, जी इफेक्टिव विल बी जी एट सरफेस माइनस माइनस कितना है ओमेगा स्क्वायर आर ई इंटू साइन स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ये हमारा जी इफेक्टिव आ गया। सो जब लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स जब पोल्स पे हम लोग देखेंगे, सो लैम्डा इज 0, लैम्डा 0 तो जी कितना आता है? दिस टर्म्स आउट टू बी 9.83, थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर इक्वेटर पे देखते हैं
सो लैम्डा इज पाई बाई 2, तो ये आता है हमारा कितना है जी, 9.78। दैट मीन्स व्हाट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट इक्वेटर दिस इज लेस देन एट पोल्स। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है। सो ये पूरा डेरिवेशन भी है इसका, ओमेगा निकाल सकते हैं आप, 24 आवर्स में पूरा एक चक्कर करते हैं वो सब करके। नहीं तो ये याद रख लो, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली सब ये याद रख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है, काफ़ी बार यूज होता है ये। यू कैन कैलकुलेट दिस एंड फाइंड आउट, यूजफुल, ठीक है। एक बार याद कर लो, कोई भी एंगल पे अगर आपको जी निकालना है तब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत बार आता है मेंस में, नीट में आ सकता है, ठीक है। याद है, क्लियर है सब लोगों को, कोई डाउट इसमें? So next small topic which you study is potential energy. So gravitational potential energy due to 2 point masses at a distance r. This is how much? This is minus g small m1 m2 by r. This is the gravitational potential energy due to interaction between these two masses, है ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है हमारा। तो अगर आपके पास 2-3 मास आ गया तो क्या होगा इसका, सपोज यू हैव 2-3 masses m1 m2 m3, तो इसके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे बताइए। सो बेसिकली आपको निकालना है यू। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं है, क्या बोल रहे हैं, अभी नहीं आ रहा है क्या? Sir, I can hear. अच्छा, तो ठीक है, अच्छा। सो यू हैव टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू these three masses। तो कैसे लिखेंगे इसको? सो बेसिकली इसको आप बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू टेक दैट ओनली दिस मास इज देयर, ठीक है। तो हमने मास को लाकर रख दिया दूर से, तो इसका कुछ एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इस माना से कैन यू टेल? Oh, sir. ठीक है ना, इसके बाद आपने एक और मास लाके रख दिया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ 2 मास की वजह से। Mm. So this will be U 1 2, potential energy due to interaction between 1 and 2. Mm. Now what you do, you take from infinity and you bring another mass here, m3 पे. So now what will happen, this mass will interact with second mass and first mass both. Mm. तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। So this is U 32 plus U 31, ठीक है। तो तीनों को ऐड करोगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, अच्छा। है कि नहीं? Mm. ना इसमें झमेला नहीं है, बिकॉज इसमें वेक्टर नहीं है, अगर वेक्टर रहते तो प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। हाँ। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी यूजफुल है। जो काम हम लोग फोर्स से कर सकते हैं उसको इसको यहाँ भी यूज करके कर सकते हैं, तो पढ़ेंगे आगे वैसे तो। सो कैन जस्ट ऐड देम, यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने, और बताइए और क्या है। अच्छा, ये क्या है, ठीक है। सो आपको ये रिलेशन पता है क्या, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और एनी फोर्स फॉर दैट मैटर, दिस कैन बी रिटन एज, इफ इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स इंटू आई कैप माइनस डेल बाय डेल एक्स इंटू के कैप, डेल बाय डेल इंटू जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड इंटू के कैप।
ना बोलेंगे डेल कहाँ से पढ़ा दिया सर, ये तो है नहीं। तो डेल इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। या पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो आपको यू दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर प्लस z। तो इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 6x स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस 6y इंटू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो बहुत बार आपको पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, फोर्स पूछेगा, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया तो ओके। एंड सिमिलरली ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स हो गया, अगर फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ डॉट डी आर माइनस। ठीक है, सो इसमें डी आर क्या होगा, दिस विल बी डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आंसर आएगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ वो अपने आप हो जाएगा, इसके साथ ये जगह एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन, सॉल्विंग दिस विल गेट द आंसर। ठीक है, नाउ इफ यू डिवाइड बोथ द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी बाय मास तो आपको रिलेशन मिलेगा पोटेंशियल लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसे भी लिख सकते हैं आप पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल जी डॉट डी आर। ठीक है, क्लियर है मनोज? यस सर। बस इतना ही है।